Let me make you efficacious with a class assessment of some art first C1 level English art forms. The first one is disconcertingly, which is an art form that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate in a way that makes someone feel disappointed or worried, discomfort, or embarrassed. All the fleshings were disconcertingly violent, attributable to the animate person they countenance in the wake of their equivalents. All the fleshlings means freshers और the beginners, जो नए नए काम करने आते हैं, जिन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है काम करने के लिए, उन्हें फ्रेशर्स कहते हैं सिंपल इंग्लिश में। एडवांस्ड इंग्लिश के लिए फ्लैशलिंग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और द बिगिनर्स, all the fledglings were disconcertingly verklempt. Verklempt means feeling nervous or upset. Attributable to means because. The animate person means criticism or insult. They countenanced. Countenance means faced. सामना करना. In the wake of means also because. और एक synonym भी बताया था attributable because and in the wake of, all are synonyms of each other. In the wake of their equivalence. Equivalence means avoiding official duties. मतलब किसी काम को ना करना, उसे नेग्लेक्ट करना, डिले करना, अवॉइड करना, काम ना करना, काम करने का बहाना करना, उसे कहते हैं equivalence. All the fledglings were disconcertingly verklempt, attributable to the animate person they countenanced in the wake of their equivalence. मतलब जो फ्लेशलिंग्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो बहुत अपसेट थे क्योंकि वो जो काम को हमेशा अवॉइड करते हैं, इनके वजह से उन्हें जो क्रिटिसिज्म सुनना पड़ रहा था उनके मैनेजर से या उनके डायरेक्टर से, उसके वजह से वो बहुत अपसेट थे। वो इसके डर में ताकि उन्हें टर्मिनेट ना कर दिया जाए। तो हिंदी में इसका मतलब ये हो गया, ऑल द फ्लेशलिंग्स वर डिस्कंसर्टिंगली verklempt, attributable to the animate person they countenanced in the wake of their equivalence. He'll be disconcertingly rump-fizzled, that is running he'll have been a virus in calisthenics. He'll be disconcertingly rump-fizzled. Rump-fizzled means टायर्ड। अब सिंपल इंग्लिश में टायर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब थका हुआ महसूस करना। एडवांस्ड इंग्लिश में rump-fizzled कहते हैं उसे। Nutty standing means because. He'll have been a pharaoh means busy in calisthenics means exercise. He'll be disconcertingly rump-fizzled, वो थक गया होगा। Nutty standing, he'll have been a pharaoh in calisthenics, क्योंकि वो एक्सरसाइज में बिजी होगा। Back in those days when I used to be a rusticule, I would be disconcertingly well smart, attributable to the exhilaration I took countenance from the ultra crepidarians. Back in those days means in past. अब सिंपल इंग्लिश में in past कहते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में back in those days कहते हैं, और back then भी कहा जाता है। When I used to be a rusticule means someone who struggles to become successful. एक ऐसा इंसान जो सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत कर रहा है। बैक इन तो स्टेज पर आई यूज्ड टू बी अ राष्ट्रकीय, जब मैं पहले एक राष्ट्रकीय हुआ करता था, जब एक ऐसा इंसान मैं हुआ करता था जब मैं मेरे स्ट्रगलिंग डेज में था। आई वुड बी डिस्कंसर्टिंगली वेल स्मार्ट मीन्स बीइंग ऑफसेट और सैड, तब मैं बहुत घबराया हुआ रहता था, बहुत ऑफसेट रहा करता था। attributable to means because. Attributable to the exhilaration means insult or criticism. I had to countenance, I had to face. Countenance means face, सामना करना। I had to countenance, मुझे सामना करना पड़ता था from the ultra crepidarians. Ultra crepidarians means the people who offer opinions beyond their knowledge. So ऐसी चीज़ों के बारे में लेक्चर देना चाहते हैं जिनके बारे में उनका कोई नॉलेज ही ना हो, उन्हें कहते हैं अल्ट्रा क्रेपिडेरियंस। मतलब बहुत बकबक जो करते हैं, जो जिन फील्ड में उनका कोई नॉलेज ना हो उसी के बारे में वो लेक्चर देना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्हें कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, इस लोगों को अल्ट्रा क्रेपिडेरियंस कहते हैं। Back in those days when I used to be a rusticule, I'd be disconcertingly well smart, attributable to the exhilaration I took countenance from the ultra crepidarians. Next one is sporadically.
It's an art form. It means sometimes and occasionally or an irregular interval. The Snollygaster politician would sporadically pay call to the Pilgalic singers. His ostensible Elmestice was to come across as an infracaninophile, however, in de facto he was desirous to pick up the causes for them. Moreover, he wanted to garner pleasantry by dint of astroturfing. The Snollygaster politician. Snollygaster means someone who is unprincipled. जिन्हें आप आमतौर पे धोखेबाज कहते हैं, अनप्रिंसिपल्ड कहते हैं। स्नॉलीगस्टर पॉलिटिशियन मतलब जो झूठे पॉलिटिशियंस होते हैं, जो हमेशा झूठा वादा करते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उन्हें कहते हैं स्नॉलीगस्टर। स्पोराडिकली मीन्स ऑकेजनली और समटाइम्स, कभी कभार। पे ए कॉल मीन्स टू विजिट टू द पिलगालिक्स मीन्स पुअर, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें कहते हैं पिलगालिक्स। वो कभी कभी उनके हाल पूछने के लिए जाया करते थे। स्नॉलीगस्टर्स मतलब जो अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियंस होते हैं वो बस कभी कभार वो जो गरीब लोग होते हैं उनके पास आते हैं उनका हाल चाल पूछने के लिए। सिंगर्स मीन्स बीकर्स। इज ऑस्टेंसिबल मीन्स जो दिखावा होता है उसे कहते हैं ऑस्टेंसिबल। इल्मिस्ट्राइस मीन्स एम, जो उनका दिखावा होता है वाज टू कम अक्रॉस एज एन इंफ्राकाइनोफाइल, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो पब्लिक है, वो सोचे कि ये एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो गरीब लोगों का मदद करता है। वो बस दिखावा होता है। इंफ्राकाइनोफाइल समवन हु सपोर्ट्स द पीपल ऑफ लोअर स्टाटस, जिन जो बहुत गरीब लोग होते हैं, ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को जो हेल्प करता है, जो सपोर्ट करता है, उस सपोर्ट करने वाले को कहते हैं इंफ्राकाइनोफाइल। मतलब ये जो अनप्रिंसिपल पॉलिटिशियंस होते हैं उनका सिर्फ दिखावा होता है कि वो सिर्फ पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए कभी कभार उनका हाल चाल पूछने के लिए उनके पास चले जाते हैं। टू कम अक्रॉस एज एन इंफ्राकाइनोफाइल, ताकि लोग सोचे कि वो बहुत हेल्पफुल इंसान है। हाउएवर इन डिफैक्टो, लेकिन असल में he was desirous to pick up the causes for them. He was desirous, he was reluctant, he was not interested. Desirous means reluctance. To pick up the causes means to support someone, किसी को सपोर्ट करना या किसी के साथ खड़े होना, उसे कहते हैं टू पिक अप द कॉजेस। लेकिन असल में उन पॉलिटिशियंस का कोई भी ऐसा इरादा नहीं होता था कि वो उन्हें सपोर्ट करे। मोreover he wanted to garner pleasantry. Garner means to gain, collect. Pleasantry means compliment और praise, प्रशंसा। उनका वो सिर्फ प्रशंसा पाना चाहते हैं, वे सिर्फ पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं बाय डेंट ऑफ एस्ट्रोटर्फिंग। एस्ट्रोटर्फिंग मीन्स फॉल्स अनाउंसमेंट। मतलब जब पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम में बहुत झूठा वादा करते हैं कि मैं ये कर दूँ, अगर मुझे वोट दिए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उससे कहते हैं एस्ट्रोटर्फिंग, झूठा वादा करना। The Snollygaster politician would sporadically pay call to the Pelgalic singers. His ostensible Elmestice was to come across as an infracaninophile, however, in de facto he was desirous to pick up the causes for them. Moreover, he wanted to garner pleasantry by dint of astroturfing. Next is clandestinely. It's an art form. It means in a secretive or hidden way. The Tamatarculist would be in a dalliance with him clandestinely when I called the shots for advertising my heart against her. That Tamatarculist means someone who is a cheater. जो चीटर होते हैं, जो उससे प्यार का दिखावा करते हैं, असल में उन्हें कोई प्यार व्यार, उनके दिल में कोई भी लव अफेक्शन कुछ होता ही नहीं है, वो बस प्यार का दिखावा करते हैं। The Tamatarculist would be in a dalliance with him. Dalliance means रोमांटिक रिलेशनशिप इन ए dalliance with him, वो सीक्रेटली उसके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में था। द Tamatarculist would be in a dalliance with him clandestinely, सीक्रेटली उसके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा था। When I called the shots, when I decided, call the shots means to decide something. When I called the shots for advertising means make your heart against someone, मतलब किसी के अगेंस्ट में अपने हार्ट को कर देना, मतलब उस इंसान के लिए कोई भी प्यार में लव अफेक्शन ना रखना, हार्ट को उसके अगेंस्ट में कर देना, उसे कहते हैं इंड्यूरेटाइज। फॉर इंड्यूरेटाइजिंग माई हार्ट अगेंस्ट हर, द Tamatarculist would be in a dalliance with him clandestinely when I called the shots for इंड्यूरेटाइजिंग माई हार्ट अगेंस्ट हर।
He was Komodo conquering clandestinely sing as the graphic he garners is by dint of salami slicing. He was Komodo conquering means पैसा कमाना टू अर्न मनी ही वाज कोमोडो कंक्वाइजिंग क्लैंडस्टाइनली वो सीक्रेटली पैसा कमा रहा था सिंगर्स मीन्स बीकर्स द ग्राफ्स्टेक मीन्स मनी और रिसोर्सेज ए गार्नर्स मीन्स कलेक्ट्स इज बाय डेंट ऑफ सलामी स्लाइसिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली रिड्यूसिंग समथिंग सो दैट पीपल कैन आइडेंटिफाइड मतलब ऐसे तरीके से चोरी करना जिससे लोगों को वो पता भी ना चले मतलब थोड़े थोड़े करके कुछ चीज़ों से चोरी करना जब वो एक थोड़े थोड़े जब बहुत एक बड़ा लेवल पे पहुंच जाता है तब लोग उससे फोकस कर पाते हैं अदरवाइज वो इतने छोटे छोटे अमाउंट में चुराते हैं कि मतलब उन पर लोगों का कोई फोकस ही नहीं जाता हो उसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग ऐसे तरह के चोरी को कहते हैं सलामी स्लाइसिंग He was Komodo conquering clandestinely singers the graphic he garners his by dint of salami slicing क्योंकि वो जो पैसा कमा रहा था वो चोरी से कमा रहा था इसलिए वो सीक्रेटली जैसे किसी को पता ना चले इसी तरीके से पैसा कमा रहा था Next one is pictossingly which means in an unwilling or reluctant manner. I'm having to draw pictossingly singers if I don't soldier on I won't be able to take out a living. I'm having to draw means to work hard कड़ी मेहनत करना pictossingly मेरा इंटरेस्ट ना होते हुए भी मुझे कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है singers means because if I don't soldier on means to work hard बहुत ज़्यादा मेहनत करना अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो I won't be able to take out a living तो मैं रोजी रोटी नहीं कमा पाऊँगा I'm having to draw pictossingly singers if I don't soldier on I won't be able to take out a living. Sporadically, I have to draw the short and soften in that elusive 7-star hotel picturesquely in spite of the fact that it's most too astronomical for me. Sporadically means sometimes or occasionally I have to draw the short and soften. Soften means to have a temporary stay. किसी जगह में टेम्पररीली रुकना इन दैट एलिसिब्रा 7-star होटल इन दैट एलिसिब्रा मीन्स अट्रैक्टिव और लग्जरियस इन दैट 7-star होटल बिकॉजिंगली इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इज मोस्ट एस्ट्रोनॉमिकल फॉर मी एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव जो बहुत महंगा होता है sporadically I have to draw the soften in that एलिसिब्रा 7-star होटल कभी कभी मुझे मेरा इंटरेस्ट ना होते हुए भी मुझे उस 7-star होटल में रहना पड़ता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट्स मोस्ट टू एस्ट्रोनॉमिकल फॉर मी वो मेरे लिए महंगा होते हुए भी होने के बावजूद भी मुझे वहाँ पर रहना पड़ता है sporadically I have to draw the soften in that elusive 7-star hotel begrudgingly in spite of the fact that it's most too astronomical for me. Next one is capricious. It's an art form but means in an unexpected or unpredictable way without careful thinking or planning. If I squandered my emolument capriciously, I'd not be having a lesson of wherewithal. If I had squandered, squandered means spending money carelessly. मतलब केयरलेसली पैसे को उड़ाना माई इमोल्यूमेंट मीन्स सैलरी कैप्रिसियसली कि अगर मैं केयरलेसली मेरे सैलरी को उड़ा देता आई वुड नॉट बी हैविंग ए लेसन ऑफ वेरिडल्स ए लेसन ऑफ मीन्स ए लॉट ऑफ वेरिडल्स मीन्स रिसोर्सेज और मनी अगर मैं पैसा उड़ा दिया होता तो आज मेरे पास इतने पैसे नहीं होते इफ आई स्क्वांडर्ड माई इमोल्यूमेंट कैप्रिसियसली आई वुड नॉट बी हैविंग ए लेसन ऑफ वेरिडल्स ऑफ getting you to be fast cases with a short fast English short fast to just get yourself